हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਵਿਦ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਗ ਕੰਟੇਨ 5 ਵਾਈਟ ਐਂਡ 3 ਬਲੈਕ ਬਾਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 5 ਵਾਈਟ ਬਾਲਸ ਆ and 3 are black balls. Clear? 4 balls are respectively drawn out. ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਬਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਬਾਲ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। what is the probability that they are alternatively of the different color? ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਆਫ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ। ਦੇਖੋ 4 ਬਾਲਸ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਈਟ ਪਹਿਲਾ ਬਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਬਾਲ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਬਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਅਲਟਰਨੇਟ। ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਈਟ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ, ਫਿਰ ਵਾਈਟ। ਇਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਟ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਆਵੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਬਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 8। ਸੋ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 5/8। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਬਲੈਕ, ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਆ ਗਈ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਵਾਈਟ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਹੁਣ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ 7 ਬਾਲ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 7। ਕੱਢਣੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਬਲੈਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਲ ਕੱਢਣੀ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਬਲੈਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 3, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 7। ਜੇ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਬਚ ਗਈਆਂ 2। ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ 4। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 4 ਤੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6। ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਈਟ ਕੱਢ ਲਈ, 3 ਵਾਈਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘਟਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 2 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 5। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਕਿ ਵਾਈਟ 3 ਬਲੈਕ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਲਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਦੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਪਲੱਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਆ 3, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਂ 3 ਫੇਵਰੇਬਲ ਆ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 3/8। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਕੱਢ ਲਈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 2। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 5, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ 7। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਵਾਈਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 4। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 2 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 6। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਬਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 4 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 5। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੀ ਫਟਾਫਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बैग कंटेन
4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग आ, फर्स्ट बैग आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰੈੱਡ ਬਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 3 ਬਲੈਕ ਬਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਗ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੈੱਡ ਬਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 4 ਬਲੈਕ ਬਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੈਗ, यानी पहला तो बैग सिलेक्ट करना, ठीक है। फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग 1 बॉल इज ड्रॉन। पहला तो एक बैग सिलेक्ट किया, फिर वो एक बॉल ड्रॉ की। प्रोबेबिलिटी की फाइंड करनी है कि बॉल ड्रॉन इज रेड। देखो मैं तुहानू ये कांसेप्ट बहुत एक वधिया जिहा कांसेप्ट हैगा सी, उहदे नाल समझांगे कि कंपाउंड इवेंट जिहड़ा इत्थे देखण नूं मिलेगा तुहानू, मतलब कि इत्थे साइमल्टेनियसली की हो रहा। पहला तुसीं की सिलेक्ट कर रहे हो, बैग, ठीक है। पहला की सिलेक्ट करोगे बैग, जिद्दां मैं तुहानू पिछली वीडियो च करवाई सी ना, वीडियो दे विच एक क्वेश्चन करवाया सीगा कि पहला तुसी की करदे हो, एक सिलेक्ट करदे हो, ट्रांसफर करके फिर बॉल कढदे हो। हुण इहदे विच की है, पहला बैग सिलेक्ट करना। कितने बैग है ने टोटल? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 1 बैग कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 1 बैग, एक बैग सिलेक्ट करना है, टोटल कितने है? 2, 1/2। जिदा हेड ते टेल हुंदा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। 2 बैग है, एक बैग आने की प्रोबेबिलिटी की जेड़ा मैं सिलेक्ट करना 1/2। भावें ये सिलेक्ट करूंगी तभी 1/2, भावें ये करना होवे तभी 1/2। ये तो बेसिक कांसेप्ट है, तुहानू आंदा। हुण कह की रहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। हुण बैग मैनू थोड़ा पता, मैं सिलेक्ट करके मेरे को पहला आया कि दूजा, मैनू तो इन्ना पता एक बैग सिलेक्ट होना, यानी कि बॉल जिहड़ी सिलेक्ट होगी इहदे विच्चों भी आ सकदी है रेड, इहदे विच्चों भी, क्योंकि इह च भी रेड बॉल्स हैगियां, इह च भी हैगियां। सो पहली कंडीशन कि पहला तो मैंने इन्ना पता, पहला मैं बैग सिलेक्ट किया, ठीक है। फर्स्ट मैं बैग सिलेक्ट करांगी, ठीक है। फिर उस तो बाद एंड फिर की करांगी, बॉल ड्रॉ करांगी, केड़ी? रेड। हुण इत्थे की हो सकदा, जिहड़ी मैं बॉल ड्रॉ करनी है रेड, 1/2, ये हैगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग एंड देन बॉल ड्रॉन इज रेड। ये की हो सकदी है? बैग 1 चो भी हो सकदी है और बैग 2 चो भी हो सकती है। जिन्होंने आ चीज बनानी है, वो कुछ औखा नहीं, ठीक है। एक शॉर्ट वे समझ लो, पहला मैं बैग सिलेक्ट किया एंड फिर बॉल की करनी है, ड्रॉ करनी। हुण जिहड़ी बॉल ड्रॉ की, इट मे बी फ्रॉम बैग 1, ठीक है, रेड बॉल फ्रॉम द बैग 1 और रेड बॉल मे बी फ्रॉम द बैग 2। सो और मीनस की हुंदा प्लस। सो हुण बस कर लो, रेड बॉल जे बैग 1 चो आंदी है, की प्रोबेबिलिटी होएगी? देखो रेड बॉल कितनी आया? 4। टोटल कितनी हैगियां ने? 7। सो 4/7। सो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इत्थे? 4/7। सो जे रेड बॉल इत्थों आंदी आ, देखो टोटल बॉल कितनी हैगियां ने? 6। रेड बॉल कितनी हैगियां ने? 2, 2/6। सो जो सैकंड चो आंदी है ते 2/6। सो इनू तुसी कैलकुलेट कर लेना, तुहाडा एंड मतलब मल्टीप्लाई। सो ये तुहाडे कोल की आ जाएगा आंसर। इदां सम करोगे ना तो ईजी लगणगे। कॉन्सैप्ट थोड़ा इनू चीज नु समझो कि वो की कह रहा है, एक बैग कंटेन करता है 4 रेड 3 ब्लैक बॉल्स, सेकंड बैग कंटेन करता 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग कि एक तुसी बैग सिलेक्ट करना, फिर उसचो 1 बॉल ड्रॉ करनी है, यानी पहला बैग सिलेक्ट किया एंड देन बॉल ड्रॉ की। प्रोबेबिलिटी की पता करनी कि जो मैं आ बॉल ड्रॉ की है कि होवे रेड। हुण जी रेड बॉल ड्रॉ की, इट मे बी आइदर फ्रॉम द बैग 1 और बैग 2, किसी भी बैग च हो सकती है ना। सो दोनों की प्रोबेबिलिटी कड़ी के लिखती, सिंपल है। इतनी कितनी सी 4 रेड बॉल, 4 टोटल 7 बॉल तो एक सिलेक्ट करी ना, ये या की, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट सम कर देंगे। Two balls are drawn at random from a bag containing 2 white, 3 red, 5 green and 4 black balls. Okay. एक बैग आ, उस बैग दे अंदर 2 white ball हैगियां ने, 3 red ball हैगियां ने, 5 green and 4 black. ठीक है जी, एक कंडीशन आ कि एक बैग दे अंदर 2 white ball हैगियां ने, 3 red, 5 green and 4 black. ते तुसी ओदे विचों 2 बॉल बाहर कढनियां, कितनियां बाहर कढनियां? 2, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो अगे वर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं करनी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। ध्यान नाल समझियो, वो की कह रहा है मैं ਜਿਹੜੀਆਂ दोनों बॉल कढनियां ना वो डिफरेंट कलर ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੀ कंडीशन हो सकती है? देखो ध्यान नाल, पहली प्रोबेबिलिटी तो ये बन सकती है डिफरेंट कलर, यानी व्हाइट ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ कलर आ सकता है? रेड।
या और मतलब प्लस। देखो ऐदा करके चलोगे ना, या मतलब दिमाग च बिठाओ कि यार प्रोबेबिलिटी पता करनी कि जो दोनों बॉल्स आ रही डिफरेंट कलर दी आन, दो बॉल्स कढ़नियां मैं, या तो एक कंडीशन की हो सकती है कि व्हाइट बॉल दे नाल रेड बॉल आ जाए, या फिर या मतलब प्लस और यही कंडीशन और मतलब प्लस। ये याद रखना प्रोबेबिलिटी इदी चलती और के एंड नाल। और की कंडीशन है कि व्हाइट बॉल दे नाल की आ जाए, ग्रीन बॉल आ जाए, और होर अगली कंडीशन की है व्हाइट बॉल दे नाल की आ जाए, ब्लैक बॉल आ जाए। व्हाइट नाल रेड भी आ सकती है, व्हाइट नाल ग्रीन भी आ सकती है, व्हाइट नाल ब्लैक। और होर केस भी तो है यार, रेड दे नाल ग्रीन भी तो आई सकती है, या फिर रेड दे नाल ब्लैक भी आ सकती है। और की कंडीशन है ग्रीन नाल ब्लैक भी आ सकती है। और तो नहीं कोई केस बचिया, देख लो भावें कोई भी देख लो। पहला व्हाइट नाल रेड ग्रीन ब्लैक आ सकता, फिर रेड दे नाल क्योंकि रेड नाल व्हाइट ऑलरेडी आ चुका, ग्रीन या ब्लैक आ सकता, ठीक है। फिर ग्रीन दे नाल ऑलरेडी रेड आ चुका, ग्रीन ना की आ सकता, ब्लैक आ सकता। बाकी ब्लैक व्हाइट सारा कुछ हो गया। सो बस कर दो, हम प्रोबेबिलिटी पता करनी है। व्हाइट बॉल कितनी टोटल कर लो पहला, 14 बॉल्स हैगियां ने साडे कोल टोटल। व्हाइट बॉल कढनी में, व्हाइट बॉल कितनियां हैगियां ने 2 डिवाइड बाय की आ गया 14। एंड देखो हुण इत्थे ऐड क्यों लगाया मैं, प्रोबेबिलिटी की आ कि पहली व्हाइट बॉल आ जाए एंड फिर केड़ी आ जाए रेड, एंड मतलब मल्टीप्लाई, एंड अगली बॉल केड़ी आ जाए रेड बॉल। देखो रेड बॉल कितनियां हैगियां ने 3। हुण ध्यान दियो वो की कह रहा विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं करनी, यानी एक बॉल मैं कर ली है, हुण टोटल बॉल्स अंदर कितनियां बच गई 30। ये ध्यान रखना चीज। वैसे भी जे किसी ने ज्यादा नहीं होंदा ना तो शॉर्ट दे विच याद रख लो कि जो टोटल करते पे ना वो 1 माइनस हो जाना, तो जो सेम चीज कोई उपरों रिपीट होंगी उपरों भी माइनस हो जाए। ऐसा याद रख लो। नहीं तो जो बेस्ट वे तो वही कहूंगी कि दिमाग च बिठाओ कि व्हाइट बॉल बाहर कढ़ ली, यानी व्हाइट बॉल बाहर कढ़ ली थी, कितनी बॉल बच गई, एक व्हाइट बॉल बच गई, तो सम टोटल भी कितना रह जाएगा 13 रह जाएगा। असं मैं हुण केड़ी बॉल कढ़नी है, रेड बॉल कढ़नी है। रेड बॉल तो 3 दियां 3 हैगियां ने, पर टोटल आउट ऑफ कितनी कढ़नी 30। क्लियर। ये पहला केस हो गया फर्स्ट। ये तो पहला या तो ये आ जाता। हुण अगला दोबारा तो शुरू करांगे फिर कि पहला व्हाइट आ जाए, व्हाइट दी तो कितनी है 2/14 नहीं हैगी है। ग्रीन 5 बॉल्स हैगियां ने बटा 30। हुण बार बार नहीं मैं समझाना, तुहानूं पता है कि 13 क्यों आया, ठीक है। प्लस व्हाइट अगेन 2/14 एंड ब्लैक 4/13। क्लियर। सो एक माइनस हो जाए। प्लस यदि प्रोबेबिलिटी लिख लो, रेड दी कितनी है 3/14, ग्रीन 5/13। एक घट जाना ना यदि रेड दी ब्लैक नाल, रेड कितना है 3/14, ब्लैक 4/13, ग्रीन ब्लैक ग्रीन कितना है 5/14 एंड ਉਹਦੇ ਨਾਲ ब्लैक 4/13। ठीक है, इन सारे कैलकुलेट करके आंसर आ जाना। अगेन मैं दस दी कि पेपर डाटा वो देगा जो इजिली सॉल्व हो जाए। क्लियर। सो इनू देख के घबराना नहीं कि इन्ना असं लंबा कितना सॉल्व करना, तुहानू तरीका आना चाहिए, उन्ना ही घट डाटा दे देगा। तरीका जरूर सीखो इस चीज का कि वो किदा कह रहा, ये कैलकुलेशन देख लेना, जो कोई इत्थे प्रॉब्लम हुई तो एक बार चेक कर लेना कि व्हाइट रेड आ 2/14 आ गया, रेड देन 3/13, व्हाइट ग्रीन 5, ब्लैक 4/13, देन रेड 3/14 एंड ग्रीन चेक हो गया 5/13। 3 रेड है साडे कोल 3/14, 4/13 सही है बिल्कुल। 5 है साडे कोल लास्ट ग्रीन 5/14 एंड 4/13। सो इतना आंसर आ जाएगा। सो कंसैप्ट समझने की कोशिश करो ये चीज़ों के, ताकि पेपर तुहाडे कोल समझ जड़ा इजीली हो जाए। मतलब ये चीज़ों का थोड़ा बेस या क्लीयर करने की कोशिश करो कि हो किधर है। ठीक है, आप क्रैमिंग इन्नी नहीं ज्यादा ये कर होनी, ये थोड़े कॉन्सैप्ट इदा दे हैगे ने, इनू समझ के चलो कि एंड की प्रोबेबिलिटी एंड ते और मतलब जो तुसी बोलदे हो ना, बोलने लगे की बोलोगे कि ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, या फिर मतलब प्लस पा देता व्हाइट बॉल कड्डी एंड देन ब्लैक एंड मतलब मल्टीप्लाई। इदा दिमाग से बिठाओ इन्हां चीज़ां। क्लियर हैगे ये ईजी है। ऐसे इदा दे क्वेश्चन होर भी काफी प्रैक्टिस करांगे, मतलब लॉट ऑफ क्वेश्चन जिहड़े आ वो तुहानूं प्रैक्टिस करवाने हैगे, क्योंकि प्रैक्टिस दे नाल ही ये वाले कॉन्सैप्ट्स क्लियर होंदे ने। जे तुहानूं वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट जरूर करिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।